माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई आसिफ इकबाल टीचर, GMS चित्रकूट, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। टॉपिक जो आज हमारा है वो है अंडरस्टैंडिंग लॉज, चैप्टर नंबर 4। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? Do laws apply to all? Read the following situation and answer the question that follow. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official's action were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1st, members of the Constitute Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of powers in independent India. They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste, or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official, nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy and administering these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. आप जानते हैं कि कुछ कानून हैं, जैसे एक ख़ास कानून है शादी की उम्र का, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट। एक शख्स कब उसकी उम्र हो जाती है किसके लिए, वोट डालने के लिए। एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और शायद यह भी कानून है किसी चीज़ को ख़रीदने या बेचने का, किसी की जायदाद को। वी नो नाउ दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। हम ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इंचार्ज है कानून को बनाने की। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये जो कानून होते हैं ये हर एक के ऊपर अपनाए जा सकते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? और कैसे नए कानून वजूद में आते हैं? कोड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल? क्या कोई कानून ऐसे भी हैं जो गैर ज़रूरी हैं या कंट्रोवर्सल हैं, यानी तकरारी हैं? What should we as citizens do under such circumstances? हमें एक शहरी होने की बनस्बत हमें इन हालात में क्या करना चाहिए? Do laws apply to all? क्या कानून सब के ऊपर अपनाए जा सकते हैं? Read the following situation and answer the question that follows. A government official helps his son to go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. कहता है कि एक गवर्नमेंट का जो अहदेदार होता है वो अपने बेटे को मदद करता है, कहता है कि आप छुप जाओ, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटे को जो उसने काम किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस जुर्म के बदले में उसे 10 साल जेल भेज सकता है। इसलिए वो जो अहदेदार होता है गवर्नमेंट का वो उसे कहता है कि आप क्या कर जाओ,
छुप जाओ। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वी राइट, क्या जो अपने बेटे को कहता है, जो उसने जुर्म किया होता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है वो उससे कहता है कि आप छुप जाओ, क्या ये जो एक्शन है उसका, क्या ये सही है? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या उसके बेटे को माफ़ कर देगा कानून क्योंकि वो उसका बाप जो है वो इकनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है? देबो इज़ ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ, ये ऊपर जो केस दिखाया गया तशद्दुद का, ये बिल्कुल किसके खिलाफ है? कानून के बरखिलाफ है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वेयर एग्रीड देयर शुड बी नो arbitrary exercise of power in independent इंडिया। जैसे आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा, जो असेंबली का जो हिस्से हैं मेंबर, वो तैयार हैं कि यहाँ पर कोई भी मनमानी एक्सरसाइज नहीं होगी खुद मुख्तार इंडिया में। दे देयर फॉर इंस्टीट्यूटेड सिविल प्रोविजन, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कवानीन मुहैया किए। डैट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, किसके लिए? कानून के लिए। कुछ उन्होंने क्या किए, बहुत सारे कानून मुहैया किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हर शख्स जो इंडिपेंडेंट इंडिया में है, यानी ख़ुद मुख्तार इंडिया में है, वो कानून के साबर क्या हैं, सब इक्वल हैं, बराबर हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, कानून फ़र्क नहीं कर सकता किसी शख्स के दरमियान, किसकी बुनियाद पर? मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर या जेंडर की बुनियाद पर। What the rule of law means is that all laws apply equal to all citizens of the country and no one can be above the law. कानून का मतलब क्या है कि तमाम जो कानून हैं वो बराबर है हर शहरी, मुल्क के हर शहरी पर, और वो कोई भी जो है वो कानून से ऊंचा नहीं है। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना कि एक गवर्नमेंट का अहदेदार, ना ए वेल्थी पर्सन, ना कि एक वेल्थी पर्सन दौलतमंद शख्स, नार इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, या एक मुल्क का जो सदर होता है वो भी कानून से ऊपर नहीं है। यानी चाहे गवर्नमेंट का अहदेदार हो, चाहे दौलतमंद शख्स हो, चाहे मुल्क का प्रेसिडेंट हो, जो भी है ये सब बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू एस्टेब्लिश इट, कोई भी जो जुर्म होता है या तशद्दुद होता है कानून के ख़िलाफ़, उसको ख़ास सज़ा दी जाती है। ऐसा ही अमल है जैसे एक शख्स जो जुर्मदार होता है, जैसे उसको दी जाती है, ऐसे ही उस शख्स को भी सज़ा दे दी जाती है जो कानून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म करता है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक, क्या ऐसा ही हमेशा होता है? इन एंशिएंट इंडिया, पुरानी इंडिया में, देयर वेर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लॉज, यहाँ क्या होता था, इन्यूमरेबल और अक्सर ओवरलैपिंग होते थे लोकल लॉज के ऊपर। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ होती थी वो एंजॉयड करती थी मुख्तलिफ आज़ादी की डिग्रियों के ऊपर इन कानून के सामने एमंग देयर ओन खुद। इन सम केसेस, कुछ केसों में, द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स, कुछ दो शख्स जो क्या करते थे, जब उनका सेम क्राइम होता था उनका इन्हिसार किया जाता था उनके बैकग्राउंड ज़ात पात के ऊपर। वे लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पनिश्ड, जो कम ज़ात के लोग होते थे उनको सख्ती के साथ सज़ा दी जाती